जनता में उम्मीद जगाना होगा, संसद की गरिमा को बचाना होगा, प्रतिभाशाली को शक्तिशाली बनाना होगा, युवाओं को राजनीति में आना होगा. A very cheerful good morning to our respected Principal Ma'am, Dr. Chaitali Chakravarti, Vice Principal Sirs, Dr. Nishikant Jha from Commerce Department and Dr. S.D. Ajikekar from Science Department, teachers and all the fellow participants of the Youth Parliament present here. I, Mansi Giri, has got this tremendous opportunity to extend a hearty welcome to one and all present here. As it is a tradition of our college, we inaugurate all our programs by invoking Goddess Saraswati. So, I request all the members and dignitaries to kindly stand up for the lighting of the lamp, followed by the Veda chanting. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती. दीनामभित्रयवतु. गणेशाय नमः. सरस्वती नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Parliamentarians or the legislature of the Union consists of the President and the two houses known as Council of States, Rajya Sabha, and House of the People, Lok Sabha. Each house must meet every 6 months. The debate and the discussion that happen in the Parliament keeps our democracy thriving. Parliament is the microcosm of the society which deliberate and debate to form laws in the country. Youth Parliament is an attempt to create a mock parliament where students discuss, debate and deliberate on current topics and issues relevant to the country and the society. It teaches how different opinion can be nurtured and channelized into constructive decision. Students' Council of Thakur College of Science and Commerce is hosting Youth Parliament for last 10 years and giving this opportunity to the students to hone their debating and communication skills for the last couple of years. This attempt of recreating the Parliament also orients our students on how the Parliament works in reality. It teaches them how debate and deliberation can lead to decision making. The Parliament will exchange their views on 2 topics today. First, Uniform Civil Code. Second, Regional Language as a Medium of Instruction in National Education Policy 2020. The Uniform Civil Code is a proposal in India to implement and formulate personal laws which apply on all citizens regardless of their religion, gender and sexual orientation. National Education Policy says that the states will have the freedom to choose the language of instruction in the democratic and decentralized process laid out in NEP. It gives me immense pleasure to introduce Ms. Priyanka Shukla
as the Honorable Speaker of today's Youth Parliament. The parliamentarians are expected to abide by certain directives and principles. I request the members of the ruling party as well as the opposition party to kindly maintain the decorum of the parliament. Parliamentarians should engage in respectful and constructive debates and avoid any personal attacks or derogatory language. Now, we will commence with the mock parliament. I hope that this formal discussion turns out to be a productive and fruitful one. All the best to all the participants of the Youth Parliament. Thank you. मैं युवा सांसद में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ ये सत्र देश के संपूर्ण विकास में सहायक होगा। सत्र का आरंभ राष्ट्रीय गान से होगा। मेरा निवेदन है सभी सदस्यों से कि वो राष्ट्रीय गान में सम्मिलित हो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महासचिव नवीन सदस्यों के शपथ ग्रहण करना आरंभ करें। Shriman Pavitra Gujrati, who stands elected from Gandhinagar constituency of Gujarat state, will now take an oath or an affirmation. Shriman Pavitra Gujrati, please. Shriman Pavitra Gujrati, do you want to take an oath or an affirmation? In which language would you like to take the oath? English. I, Pavitra Gujrati, having been elected as a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of the India, and that I'll faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Jai Hind. Srimati Anshika Soni, who stands elected from Saharanpur constituency of Uttar Pradesh state, will now take an oath or an affirmation. Srimati Anshika Soni, please. Srimati Anshika Soni, do you want to take an oath or an affirmation? In which language would you like to take the oath? Hindi. मैं
अंशिका सोनी, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि वो नए सदस्यों का परिचय दें। 2 ministers, Anshika Soni and Pavitra Gujarati, have been promoted. मुझे ये सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि 19 जुलाई 223 में राजगढ़ महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड कट रिपीट 2023। मुझे ये सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि 19 जुलाई 2023 में राजगढ़ महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड के अंदर 30 जन की मृत्यु और अनगिनत लोग घायल हो गए। मेरी मंत्रीगण से ये निवेदन है कि वो उनके और उनके परिवार के शोक में शामिल हों। माननीय अध्यक्ष महोदया और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश ने हाल ही में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना का सामना किया है। उड़ीसा में हुई इस रेल दुर्घटना का हमारे मन एवं हमारे देश पर बहुत ही गहन ठीक है, सुनना, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी महोदया और सभा में उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। महाराष्ट्र में हुई इस लैंडस्लाइड का हमारे जीवन पर एक बहुत ही गहन इम्पैक्ट पड़ा है और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सरकार का मुखिया होने के तौर पर मैंने ये सुनिश्चित किया है कि सभी घायलों और जितने भी लोगों की जान गई है इस हादसे में उनको उचित इलाज और मुआवजा पेश हो। क्यों इतनी गाढ़ी हिंदी क्यों बोल रहा है? सभा में उपस्थित सभी साथियों को और आदरणीय अध्यक्ष महोदया को मेरा सादर नमस्कार। महाराष्ट्र में हुई इस लैंडस्लाइड में हमारे बहुत ही साथियों की जाने गई हैं और इस बात का हमें बहुत ज़्यादा खेद है और मैं सरकार का मुखिया होने के तौर पर यह बात सुनिश्चित किया है कि जितने भी लोगों की जाने गई हैं और जितने भी लोग पीड़ित हैं या घायल हुए हैं उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों की जाने गई हैं या जितने भी लोग घायल हुए हैं उनके साथ और उनके परिवारों के साथ हमारी गहन संवेदना है। और अंत में मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोगों की जाने गई हैं उनकी आत्मा की शांति हो और जितने भी लोगों को चोट लगी है या घायल हुए हैं उन्हें उचित समय पर इलाज उपस्थित कराए और भगवान उन्हें स्वास्थ्य बरते। धन्यवाद। Honorable Madam Speaker and all the members of the Parliament present here. In the light of the events that have happened in the past few months in Maharashtra, my heart sinks just to think of what the affected people might be going through in these areas. People have lost their homes, their lives, and some have even lost their family members. My party and I stand in unison to send condolences to all the affected families.
I hope God give them strength and that this hope becomes their light in these unfortunate events that have caused darkness in not only their families but in our whole country. Om Shanti. सदस्य शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण के लिए मौन धारण करें। बोलो। हाँ, सब बैठ जाएं। अरे सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्नकाल आरंभ होने जा रहा है। अपने प्रश्न, तथ्य, अथवा जवाब की प्रक्रिया शुरू करें। प्रश्न काल 107 श्रीमद प्रथम सिंह जी। मैडम स्पीकर, आज मुझे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए और अपना प्रश्न पूछते हुए बड़ा ही कष्ट हो रहा है, बड़े ही पीड़ा में हूँ। और अपनी पीड़ा का वर्णन मैं बस एक शेर से करना चाहता हूँ कि अजीब दर्द का रिश्ता है इस दुनिया में, अजीब दर्द का रिश्ता इस दुनिया में, जलता है जहाँ कोई मकान तो अपना घर लगता है मुझे। मैडम स्पीकर, मणिपुर हमारे इसी देश का एक राज्य जो पिछले कई महीनों से जल रहा है। देखने वालों का तो ये भी कहना है कि उस पूरे प्रदेश में कुकी भाइयों और मैतेई भाइयों के बीच में एक विभाजन सा हो गया। हजारों घर जल गए, 50,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए, आज अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रह गए। और कुछ तो ऐसी भी घटनाएं हुए जिससे ये पूरा देश शर्मसार हुआ। मैडम स्पीकर, आर्मी लगा दी गई और भी कई सारे फोर्सेस का, बलों का उपयोग किया गया, पर आज भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई है। पूरी मणिपुर की हालत देख के मुझे बस एक ही बात कहनी है कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, पर ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल कोई नहीं मिलेगा। मैडम स्पीकर, इतने महीने बीत गए, आज तक प्रधानमंत्री के तरफ से पूरे देश को या मणिपुर को कोई संबोधन नहीं किया गया। मैडम स्पीकर, ये पूरी सत्ताधारी पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि इन्हें पूरा देश एक नज़रिए से दिखता ही नहीं है। इन्हें साउथ नहीं दिखता, इन्हें कश्मीर नहीं दिखता, इन्हें नॉर्थ ईस्ट नहीं दिखता, इन्हें दिखती है तो बस सत्ता। There is no sense of responsibility shown till now, neither from the state government nor from the center. मेरा कुछ सीधा सवाल है, अभी तक कोई भी कंसेंसस डेवलप क्यों नहीं किया गया और अभी तक कि कोई भी एक लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक सॉल्यूशन जिसकी मणिपुर को सख्त ज़रूरत है वो भी तक प्रोवाइड नहीं की है, ना आज तक उस पर कोई चर्चा हुई है। अभी तक प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन अभी तक क्यों नहीं वहाँ लगाया गया है ताकि एटलीस्ट एक डायलॉग का माहौल चालू हो और कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकले। मैं चाहता हूँ हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी इस पूरे मामले पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। गृह मंत्री। सबसे पहले तो माननीय स्पीकर मैडम, आपको मेरा नमस्कार और यहाँ बैठे सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मेरा नमस्कार। मैं ये पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूँ कि मणिपुर में जो भी हुआ और जो हो रहा है वो शर्मनाक है, लेकिन विपक्ष की उस पर राजनीति करता है उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। और तो और मणिपुर में जो अभी हाल ही में जातीय हिंसा हो रही है ये कोई नई बात नहीं है, इनका एक बहुत बरसों पुराना इतिहास रहा है, तो इस पे हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। हुआ ये कि म्यांमार में जब सिविल वॉर शुरू हुआ तो वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार को गिरा दिया गया, वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई जिससे वहाँ पे काफी हिंसा हुई और हमारे वहाँ के रहने वाले कुकी समुदाय के लोगों को काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। इसलिए वो यहाँ म्यांमार, मणिपुर और मिजोरम में आके बस गए एज रेफ्यूजीज, और इसीलिए वहाँ पर जो जातीय हिंसा भड़क रही है वो हमारे मणिपुर के ही मैथी भाइयों,
कुकी और नागा भाइयों के बीच में हिंसा हो रही है, जिससे काफी तकलीफ स्टेट को ही नहीं पूरे देश और सारी इससे भी संबंधित एजेंसियों को करनी पड़ रही है। और ये बहुत ही पुरानी समस्या रही है, इसका अब तक कोई हल भी नहीं निकल पाया है। मैं ये भी इस पटल पर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को मणिपुर पर 6 साल हो गए हैं। उससे पहले महीनों 60 दिन 190 दिन मणिपुर में कर्फ्यू लगा रहता था, सड़कों पर बंद रहता था, ऑब्स्टिकल्स लगे रहते थे, यहाँ तक कि बेसिक सामानों की आपूर्ति भी नहीं हो पाती थी। पेट्रोल 500 रुपए लीटर बिकता था, एक गैस का सिलेंडर 2000 रुपए का बिकता था। और ये सारी चीजें एक बहुत ही आम बात हुआ करती थी, बहुत ही सामान्य सी बात हुआ करती थी। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर प्रयास किया और इन सारी चीजों पर एक पूर्ण विराम लगाया है। और इससे ना कि सिर्फ हिंसा पर काफी हद तक रोक लगी है, बल्कि मणिपुर को विकास की एक नई दिशा भी जरूर मिली है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल अब तक क्यों नहीं लगा, सीएम को हटा देना चाहिए, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री कोऑपरेटिव हैं तो प्रेसिडेंट रूल लगाने की क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने जो भी केंद्र सरकार द्वारा उनको बताए गए सॉल्यूशंस और जो भी डायरेक्टिव्स हैं उन्होंने एक समय सीमा पर लागू किए हैं। और इतना सब होने के बाद भी अगर विपक्ष प्रेसिडेंट रूल चाहता है तो ये साफ दर्शाता है कि किसको अपनी राजनीति चमकानी है। हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। महिलाओं के साथ जो हुई बर्बरता जो मणिपुर में हुई, एक बहुत ही दुखद, एक शर्मनाक और पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है। लेकिन विपक्ष ने इसको भी नहीं छोड़ा है। मैं आप सबको ये विश्वास देना चाहता हूँ स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी आरोपी इस मणिपुर के घिनौने कांड में शामिल है उनको घसीट के लाया जाएगा, चाहे वो पाताल में भी क्यों ना हो, उन्हें खींच कर लाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। हमारे देश में अभी जो हिंसा फैल रही है वो उसमें आग में घी डालने का काम तो विपक्ष ने कर ही दिया है, ऊपर से उस पर उन्होंने कंसेंसस भी नहीं बनाया। हाल ही में जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उससे जातीय हिंसा मणिपुर में भड़की है। उसके भड़कने के बजाय विपक्ष को आना चाहिए था, सारे दलों को मिलना चाहिए था, अपील करनी चाहिए थी शांति की, लेकिन उन्होंने इसके बजाय सिर्फ आग में घी डालने का काम किया है बस, और कुछ नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मणिपुर में जितने भी जगह पर हिंसा हो रही है वहाँ हमने पुलिस मिलिट्री लगाई है और हिंसा को पूरी तरह कंट्रोल में लाने की हमने पूरी कोशिश की है। और यहाँ सिर्फ मैं नहीं, मैं हमारे स्वयं प्रधानमंत्री, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज अ गवर्नमेंट होली रिस्पॉन्सिबल है, इस पर आंसरेबल हैं और इस पर आंसर करने आए हैं। ना कि इनके टाइम पे जब यूपीए गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री के सिर्फ एक राज्य मंत्री को भेज दिया जाता था और एक बयान देकर पूरे इतने सेंसिटिव मामले को रफा दफा कर दिया जाता था। और अभी जैसे कि हमारे भाई ने काफी शायरियां भी की, शेरो शायरियां की, मैं बताना चाहता हूँ कि इतने गंभीर और सेंसिटिव इशू पर शेरो शायरियां करना, कविताएं पढ़ना, ये विपक्ष को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। If you are in opposition, so act like one. उसके बाद अभी जो हाल ही में हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मैं स्वयं प्रधानमंत्री उस पर सारी बारीक नजर बनाए हुए हैं और हम ये पूरा आश्वासन देते हैं कि हम सारे दलों को जहां भी हिंसा हो रही है सबको एक साथ लाएंगे और इस हिंसा पर रोक लगाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस हिंसा का समाधान निकालने का सिर्फ एक उपाय सिर्फ हमारे सरकार के पास ही है, विपक्ष के बस की ये बात बिल्कुल नहीं है। आज तो बस एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे जनाब ने कहा इन्हें कश्मीर नहीं दिखता है, इन्हें साउथ नहीं दिखता है, नॉर्थ नहीं दिखता, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर विपक्ष कश्मीर की बात ना ही करे तो बेटर है। मैं ये भी अंत में याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने 370 जैसा असंभव सा लगने वाला काम भी इसी सरकार ने हटा कर दिखाया था। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 108 श्रीमती दिन्या बोरकर। Honorable Speaker, Madam, and my fellow members of Parliament, the Odisha train crash was a disconcerting event, and my condolences extend to all the individuals and their families. This crash has come as India's most deadliest crash in the last 20 years, and it claimed the lives of 294 people. So I would like to ask the Railway Minister, what caused such an horrendous act, and what
And furthermore, what are the precautions that are being taken so that such an act does not occur in the future? Railway Minister. Greetings, Madam Speaker. First of all, my condolences to each and everyone who lost their lives in Odisha train accident. It was a disastrous thing that happened, and it was basically a mishappening. To be honest, it's wrong to say that there was no thing that the government is not keeping any sorts of thing in mind regarding the train accidents. Our government is planning to introduce various measures such as regular maintenance and inspection, such as introduction to new technologies, such as introduction to ACT and PCT. We, as the government, are planning to introduce internal training and assessments to ensure that such sort of hindrance and such sort of disastrous act never happen again in the near future. So we are working on it, and of course we are introducing many schemes such as Kavach 2.0, which has already been established over thousands of kilometers in India, and we are focusing on these things. And the thing is also about providing subsidies to the people who lost their dear ones in this derogatory act. Thank you so much. आज सदन के पटल पर फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 लाया गया है, जिसका परिचय स्वास्थ्य मिनिस्टर देंगे। Honorable Madam Speaker, the Pharmacy Amendment Bill 2023. The implementation of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 led to repealing of various acts applicable in the erstwhile state of Jammu and Kashmir, including the Jammu and Kashmir Pharmacy Act 2011. This notification created ambiguity as it did not mention that whether the person possessing a qualification under the Jammu and Kashmir Act 2011 can be considered for registration. Hence arose the need for amendment of Section 32C in the Pharmacy Act 1948. 32C. Notwithstanding anything in the Section 32, any person whose name has been entered in the Register of Pharmacists maintained under the Jammu and Kashmir Pharmacy Act 2011 or possesses qualification as under the said Act shall be deemed to have been entered in the Register of Pharmacists prepared and maintained under the Chapter 4 of Pharmacy Act 1948. Subject to condition that an application to be made in this behalf within a period of 1 year from the commencement of Pharmacy Amendment Act 2023 and on payment of such fee and in such a manner may be prescribed by the State Government of Union Territory of Jammu and Kashmir and the Administration of Union Territory of Ladakh. जो इस बिल के सहमत में है वो अपना हाथ उठाएं। जो इस बिल के असहमत है वो अपना हाथ उठाएं। ध्वनि मत के कारण हम इस बिल के पक्ष में हैं और सदन इस बिल में संशोधित करने की अनुमति देता है। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि ध्यान आकर्षण प्रक्रिया सदन के पटल पे लाई गई है, उसकी कार्यवाही शुरू की जाए। Honorable Speaker, Madam, the diversity that we see in this country is unparalleled
and incomparable to any other country in the world. We have 22 official languages, 6 physical divisions on the basis of geography, 10 regions on the basis of physiography, and many people who follow their own practices, be it faith, and several socio-cultural and economical practices. And yet today suddenly, the ruling party thinks that it is the need of the hour to implement a bill such as UCC. The UCC has been sold in the parliament as an act which gives equality to everybody in the country. Well, let me read out some articles from the Constitution of India that we all abide by, which talk about equality. Article 14, which states equality before law and states that every person is equal. Article 15, which has the prohibition of discrimination on religion, on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 16, which deals with equality in opportunity of public matters of employment. Article 17, which deals with abolition of untouchability. And Article 18, which aims at the abolition of titles. They are all aimed at achieving equality. Then why is there a need for UCC? The IPC and the CRPC and Indian Evidence Act are also applicable to every citizen, regardless of any other discrimination that will be faced by them. And we have also seen that our judicial system is very capable in terms of bringing about development in women's rights. And it can be seen through the Triple Talaq case and the abolition of Triple Talaq. Honorable Speaker, Madam, it is also very ironic that when the ruling party speaks about equality, they talk about equality only for the civilians and not themselves. They themselves follow an equitable approach. I want to ask you, when you are speaking about equality, why is there inequality in terms of special statuses which are being conferred to states? Why are they being promised of special statuses? I want an answer on that. I want to ask you, where is the equality in fund distribution? Why are some states being given a lot of funding and some states are not being a lot of funding when everybody pays the same amount of GST? You yourself have adopted an equitable approach for social justice, and yet you want equality? I believe that amendments in certain laws and rights should be made. UCC is nothing more than extremism. Thank you. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत में सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि मेरे एक साथी ने कुछ शेर व शायरी में एक बात कही थी कि ना तो आपका ध्यान साउथ पे है, ना तो आपका ध्यान जम्मू और कश्मीर पे है, ना आपका ध्यान नॉर्थ ईस्ट में। तो उनके लिए एक छोटी सी पंक्ति है कि वो सारे काम फाइल्स पे ही करते थे। तो मैं एक छोटी सी पंक्ति कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी फाइलों में दर्ज गाँवों के रंग गुलाबी हैं, ये दावे झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। तो आपने सारे काम हमेशा आज़ादी के बाद करीब 60 से 70 वर्षों तक केवल फाइल्स पे ही किया। लोगों को झूठा दिलासा देना, झूठे वायदे करना, झूठे स्कीम्स का अनाउंसमेंट करना। आप देखिए, देश का यह दुर्भाग्य है कि देश के एक बहुत बड़े हिस्से में ना कोई रेलगाड़ी थी, ना कोई एयरपोर्ट था, ना कोई IIT, ना कोई IIM, ना कोई एजुकेशनल सेंटर था। ये सब किया था आपका ही है। दूसरा, अभी हमारे एक साथी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का वर्णन कर रहे थे। मुझे लगता है शायद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को आर्टिकल 25 के आगे देखा ही नहीं। आप ये देखिए कि मतलब जब भी आप संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वहाँ से लेकर के भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ना तो ये भारत के संविधान को मानते हैं, ना तो भारत के संविधान को ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दूसरा जो विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड का, देखिए ये इनकी बातें जो है बहुत विरोधाभासी है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC ये देश के सभी नागरिकों पे समान है। संविधान जो है देश के सभी नागरिकों को समान तौर पे देखता है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका जो लेना देना है वो शादी है, विवाह है, उत्तराधिकार है, शादी का रजिस्ट्रेशन है। और अगर किसी परिवार में कोई विवाद हो जाए तो विवाद के बाद होने वाला जो संपत्ति का बंटवारा है, आप ये देखिए कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी जो अपने आप को माइनॉरिटी कहती है, जो कि पर्सनल लॉज के हिसाब से चलती है।
अगर वहाँ किसी महिला को एक तलाक 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 बोल करके ट्रिपल तलाक दे दिया जाए तो वो तलाक मान लिया जाता। और अब अभी तक ऐसा ये देश में चलन रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जो महिला है वो केवल अपने घर से काजी, काजी से फिर वापस घर, इस तरह से वो चक्कर लगाती थी और भटकती थी। इस देश का एक और दुर्भाग्य है कि इस देश ने 1986 से लेकर के 2020 तक शाह बानो के केस से लेकर के सायरा बानो तक का सफर किया। आप ये देखिए कि 1986 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें ये कहा गया था कि किसी भी महिला को जिसको आप तलाक देते हैं उसको आपको मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन इनकी ही सरकार थी मान्यवर की जिन्होंने एक धर्म के दबाव में आकर के सरकार के फैसले को पलट दिया। दुर्भाग्य की बात है। सन 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फिर से वर्डिक्ट आया सायरा बानो के प्रकरण में। उस समय भी इन्होंने केवल धर्म को एक आधार बना करके धार्मिक चश्मे से उस बिल का विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम ट्रिपल तलाक बिल लाने में और राष्ट्रपति से साइन करवाने में हम सफल रहे। अब एक महोदय ने कहा कि फंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं इनकी जानकारी के लिए बात कहना चाहता हूं कि संविधान के आर्टिकल 280 में जीएसटी काउंसिल का वर्णन किया गया है। इस देश में जो टैक्स का कलेक्शन है और टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जीएसटी काउंसिल करती है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अपनी आवाज वहां क्यों नहीं उठाते हैं, यहाँ क्यों उठाते हैं। आप अपनी आवाज को सही जगह पे उठाइए ना। दूसरा, इन्होंने कहा कि फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसी को स्पेशल स्टेटस देते हैं, किसी को ज्यादा फंड देते हैं। अरे मान्यवर, ये समस्या आपकी ही है। आप जब जब विपक्ष में जाते हैं तब तब आप स्पेशल स्टेटस की मांग करने लगते हैं, जब आप सत्ता पक्ष में आते हैं तो स्पेशल स्टेटस भूल जाते हैं। मेरा सदस्य से निवेदन रहेगा कि अपना पॉइंट प्लीज कंटिन्यू। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश आगे बढ़ रहा है, एक नए प्रक्रिया के तौर पर हम बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, हम एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप जो बदलाव हो रहा है सामाजिक तौर पे उस बदलाव को लाइए, स्वीकार कीजिए। अगर उसमें कुछ अंतर विरोध होगा तो हम उस पर चर्चा करके उसका एक हल निकालेंगे। धन्यवाद। आदरणीय स्पीकर महोदय जी, आज 2023 चालू है। मैं विपक्ष को ये बताना चाहता आज 2023 चालू है। मैं विपक्ष को ये बताना चाहता हूँ कि पुराने टाइम को भूल जाइए, अब आज हम ध्यान देते। जैसे कि हमारे फेलो कलीग ने कहा कि आर्टिकल 25 की इन्होंने बात की, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 25 हमें ये कहता है, any people have right to profess, right to practice and right to propagate। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सकता है और उसे फैला सकता है। अब हम आएंगे आर्टिकल 44 पे, जो हमें यूसीसी के बारे में कहता है। यूसीसी स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कोड किसी धर्म की किसी प्रैक्टिस को रोकता है जो सीधा सीधा आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। Now we will come to Article 13. Article 13 says that any law which is inconsistent to Article 25 is null and void. जो ये यूसीसी कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्पीकर महोदय, ये मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लग रहा, ये मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिविल कोड लग रहा है। थैंक यू। Honorable Speaker, Madam, in my opinion, the lens through which the opposition seems to view the UCC seems to be quite distorted. The main aim of UCC is not to break the national integration on the basis of religion. In fact, our aim is to bring every individual under a common umbrella. Also, my second point, why is the opposition so afraid of a change? A country like India has already faced a lot of changes. For example, we'll take the GST. I bet it was quite a complicated scenario for our country, and we have come out of it with flying colors. So why not with this? Also, our opposition has mentioned Article 13. If something goes wrong, we have this article with our right to change any mishaps which can occur or may not occur with this article. Thank you.
मैडम स्पीकर, हमारे एक सत्ता दल के साथी ने भी बात किया कि पिछले 70 साल में क्या हुआ। ठीक है, 70 साल ठीक है, 70 साल में शायद कुछ ना हुआ हो, पर पिछले लगभग 10 साल से अभी सरकार, पिछले 5 साल की एक सरकार, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अभी तक ड्राफ्ट कहाँ है यूसीसी? अब ये तो ना कहिएगा कि अभी तो हम नए हैं, अभी काम कर रहे हैं। देखिए, जब एक नई नवेली बहू आती है घर में, तो वो 10-15 साल बाद वो उसे भी तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। वो 10-15 साल बाद ये नहीं कह सकती कि अभी भी मैं नई हूँ। नहीं तो होता ये है कि सास के ताने सुनने पड़ते हैं। यूसीसी की बात कर रहे हैं हम आज इस सदन में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूसीसी को संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि वो लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों को पावर है कि वो अपने अपने हिसाब से लॉ बना सके। एक स्टेट की मैं बात करना चाहता हूँ जहाँ पे यूसीसी एग्जिस्ट करता है, गोवा। अब अचरज देखिए उसी स्टेट के यूसीसी की एक पति, उसके आर्टिकल 3 में लिखा है, अगर एक पति की पत्नी ने 30 साल की उम्र अचीव कर ली है और अगर अपने विवाह में उसने एक पुत्र को जन्म ना दिया हो, तो उस पति के पास राइट है कि वो दूसरी शादी कर सके। अजब बात है मान्यवर कि हमारे स्टेट के ही एक हमारे स्टेट का ये कानून है और इसे यूसीसी का नाम दिया गया। और हमारे पास आज यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड या यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ तो एग्जिस्ट करता ही है, फिर भी कुछ साहस तो देखिए मान्यवर की कुछ लोग जाके कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को मालाएं पहनाते हैं। लॉ कमीशन, सिर्फ लॉ कमीशन बनाने का जो काम कर रहे हैं हमारे सत्ता दल वाले, सिर्फ लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है कि यूसीसी इज नॉट नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। हमारा देश उसमें इतने ट्रेडिशन, इतनी एथनिक बैकग्राउंड है, इतना कल्चरल डाइवर्सिटी है कि उसे एक ही अम्ब्रेला में फिट करना आसान नहीं है। ये बात मैं भी मानता हूँ और कहीं ना कहीं ये आप भी मानते ही। आइडियल सिचुएशन में यूसीसी होना चाहिए, इसका प्रावधान हमारे संविधान में भी है, पर आइडियल सिचुएशन में तो मिनिमम वेज फॉर लेबर्स, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ये भी तो होना चाहिए। पहले इस पे तो बात करते हैं। जो गैप है आज हमारे पर्सनल लॉज में और यूसीसी में, वो बहुत बड़ा है। मैं एक छोटा सा सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि पहले तो आप काम कीजिए जो पर्सनल लॉज हैं उनको मॉडर्नाइज करने पे। एक बार धीरे धीरे वो मॉडर्नाइज होते हैं तो अपने आप यूसीसी का पाथ खुल जाएगा और आप आराम से हम पूरा देश एक साथ मिलकर उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं पॉलीगमी की बात होती है। एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 2022 का रिसर्च है पॉलीगमी। उसमें कंक्लूजन में सीधे पेश कर रहा हूँ आप लोग के सामने कि पॉलीगमी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम लेवल्स। जो उनकी पुअरेस्ट की आंकड़ा था, पुअरेस्ट लोगों का आंकड़ा, उसमें पॉलीगमी एग्जिस्ट करती है 2.4%। जो उनका रिचेस्ट था उसमें पॉलीगमी एग्जिस्ट करती है 0.5%। They also concluded that prevalence of polygamy in India is slowly fading away. But हमारी सत्ता दल, हमारे आदरणीय मंत्री लोग सारे ये सी 2-3% के फॉल्ट लाइन को बस एक मुद्दा बना के पॉलिटिक्स खेले जा रहे हैं। बस बड़ी बड़ी बातें होंगी वोट्स के लिए और यूसीसी भी महज आपके लिए बस एक बात है, ठीक है। और जैसा कि आपने कहा कि दावे झूठे किसके हैं और ये वादे किताबी किसके, वो तो इलेक्शन में पता चल ही जाता है सबके। हमारे प्रैक्टिकलिटी और न्यूट्रलिटी की बात करते हैं यूसीसी में। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जब चूहे के पूंछ पे हाथी का पाँव रखा हो ना, तो न्यूट्रलिटी जाके उस चूहे से पूछे क्या होती है।
Madam Speaker, UCC is nothing, just a tool to hamper our social fabrication, and that should not be, implemented right now. मैं एक छोटी सी बात कह के अपना स्पीच खत्म करूंगा कि कभी कभी मैं गहरा चिंतन करता हूँ इस पूरे विषय पे, और कभी कभी इस चिंतन में ये सोचता हूँ कि हम कितने निचले स्तर की राजनीति पे उतर आए हैं आजकल। और मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक कविता की चंद पंक्तियों से अपना विचार विमर्श करूँगा कि बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर कभी ऐसा ना था। गिले शिकवे भी रहते थे यहाँ, मगर ऐसा ना था। जहाँ कहीं शीरी बातें वहीं कहीं तल्ख बातें भी थी, मगर तल्ख बातों का असर कभी ऐसा ना था। अध्यक्ष महोदय, ये लगता है कि हमारे साथी की बात में थोड़ा सा विरोधाभास है। इन्होंने आर्टिकल 44 का जिक्र किया और कॉन्करेंट लिस्ट का जिक्र किया, तो इन्होंने खुद ही बता दिया है कि कॉन्करेंट लिस्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि चाहे उसको स्टेट इंप्लीमेंट करे चाहे उसको सेंटर इंप्लीमेंट करे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमने स्टेट्स को या किसी को बांध नहीं रखा यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आज तक कोई ड्राफ्ट नहीं है। मैं इनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि भारत में जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड, जिसके कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूव किया है और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो बिल आ भी चुका है और कुछ ही महीनों में वो बिल पास भी हो जाएगा। तीसरा, इन्होंने बात किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 में इस बात का जिक्र है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। चौथा, इन्होंने कहा कि मैं बहुत गहन चिंतन में डूब जाता हूँ देश की समस्याओं को लेकर के। ये सारी समस्याएं आपके द्वारा ही किया गया। अगर आप देखिए, मतलब मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कहते हैं कि चूहे की पूंछ पे एक हाथी का एक पैर है। अब आप ये देखिए, दुनिया में केवल भारत एकमात्र ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक वर्ग की आबादी 25 से 30 करोड़ है, ऑफिशियली अनऑफिशियली 40 करोड़, और वो अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। मतलब आप ये सोचिए कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि इन्होंने देश को हमेशा से जाति पंथ मजहब के आधार पर बांट रखा है। जिस धर्म की आबादी इस देश में 25 से 30 करोड़ है, वो अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है, उसको ये सही ठहराते हैं। और आप एक और बात देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, हमारी सरकार का ये पक्ष है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल राइट्स को लेकर के है। इनका पर्सनल फ्रीडम से, एक्सप्रेशन से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि किसी महिला का विवाह हो तो उसके शादी का रजिस्ट्रेशन हो, उसको संपत्ति में उसका हक मिले, उसके आने वाली पीढ़ी को हक मिले। और मेरा ये उनसे अनुरोध है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ राज्यों में आने दें। अब कुछ राज्यों में हम एक बार देखेंगे एक मॉडल के तौर पे, और अगर ये मॉडल बेहतर रहा तो जरूर हम इसको सेंटर में इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। माननीय महोदय, जैसे अभी हमारे अपोजिट रूलिंग पार्टी के मेंबर ने कहा कि ये चाहते हैं कि कुछ राज्य में लाए, तो मैं बता दूं, भारत देश में कुछ स्टेट के पास ILP, जिसको इनर परमिट लाइन भी कहा जाता है, तो उनके में झारखंड, नागालैंड और भी बहुत स्टेट हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम कुछ स्टेट में लाएंगे कि हमें इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। तो मैं इनको एक बात बता दूं, जहाँ पे हमारे राज्य के कुछ नागरिकों को रहने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, पहले एक महीने पहले रजिस्टर करना पड़ता है। हमारे खुद के राज्य को रजिस्टर करना पड़ता है, फिर जाके वहाँ पे हमें परमिशन मिलती है कि हम वहाँ पे आके रहें। जहाँ हर स्टेट में रहने के लिए हमें परमिशन मिल रहा है, वहाँ पे आप कैसे लाएंगे UCC? मेरा इनसे ये कहना है। माननीय महोदया, जैसे कि मेरे फेलो पार्लियामेंट्री ने कहा कि भारत देश में अभी भी कई राज्यों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, पर पहले ये इनर लाइन परमिट मिलना असंभव था। अब इनर लाइन परमिट मिलना बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया है। अब इनर लाइन परमिट सिर्फ उधर के कल्चर को बचाने के लिए दिया जाता है। उधर अगर किसी टूरिस्ट को जाना है तो वो जाके उधर इनर लाइन परमिट ले सकते हैं, वो आधे घंटे में आपको इनर लाइन परमिट दे देते हैं। कल्चर बचाने के लिए
इम्प्लाई किया जाता है। धन्यवाद। माननीय स्पीकर महोदय, मुझे पहले ये बात नहीं समझ में आती है कि ये जो सरकार है ये कोई भी नया कानून लाती है तो उसे है सब मास्टर स्ट्रोक प्रमोट करती है। इन्होंने 1-2 महीने से यही किया है कि यूसीसी एक मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। मैं इनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यही सरकार थी जिन्होंने फार्म्स लॉ को इम्प्लीमेंट करने का बहुत ट्राई किया, पर विरोध होने के बाद इन्होंने वो मास्टर स्ट्रोक से पीछे हट गए। जैसा कि हमारे फेलो मिनिस्टर्स ने कहा कि इन्हें हम अप्लाई करके देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, आप कहाँ अप्लाई करोगे? आप किन किन वर्ग को समझाओगे कि यूसीसी क्या है? आप समझा पाओगे आदिवासी वर्गों को, आप समझा पाओगे पिछड़े वर्गों को? अगर आपको यूसीसी पे बात करनी है तो उससे पहले उससे अच्छे से ड्राफ्ट करो, उसे पेश करो, तभी उस पर बात करो, नहीं तो इस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी रूलिंग पार्टी से निवेदन है कि इस विषय को कंक्लूड किया जाए। माननीय मैडम, जैसे कि अपोजिशन ने कहा कि ट्राइबल लोगों को कैसे समझाया जाए, अब हमारे देश में बड़े बड़े पदों पर ट्राइबल लोग विराजमान हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोच लेते कि उसका भाग्य यही है, वो यही रहने वाला है, वो इसी कायदे कानून में रहेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? उसका विकास कैसे होगा? हम लोग ट्राइबल लोगों को सिर्फ जंगल इन्हीं बातों पे तो नहीं छोड़ सकते। हमें उनका विकास करना होगा, हमें उनको समझाना होगा, हमें इस देश को साथ में आगे बढ़ाना है। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम लोग पूरे प्रयास करेंगे ट्राइबल लोगों को उनका विकास समझाने के। मेरी सांसद से ये निवेदन है कि दूसरा विषय NEP शुरू किया जाए। Honorable Speaker, Madam, the NEP 2020 states that the primary mode of instruction up till the 5th standard and preferably the 8th standard be that in the regional language. Now this brings into question certain issues, certain number of issues that I would like to highlight. The first problem is that what about the students who have moved from different states? Let's say there are people who have migrated into a new state wherein their child has not attained education up to the 6th standard and is under the 5th standard. How is he or she to cope up with the regional language of that state when a newcomer cannot adapt to a new language so quickly? Second question is that we all know how much of resources we lack in this country in terms of education. The teacher to student ratio is absurd. Now how would the ruling party and the educational minister make sure that there are teachers available for teaching these students? What about the teachers who are already having their job teaching the students in non-primary modes of language? And thirdly, a very important question that I want to ask is that in each state in India, there are different dialects which are being spoken. There are different sounding words which are used. And diversity is such a big part of our heritage and our culture. What is the answer by the education minister or the ruling party about the selection of dialect in which students will learn, and how will that be inclusive? Honorable Speaker, Madam, I believe that being connected to the regional roots is important, but I think that India today should look in future, should look at teaching students different languages, foreign languages which are being spoken on a massive scale outside India, since we have the biggest youth population anywhere else in the world. I believe that this is nothing more than resources being allocated to sources and places which are not necessary. Thank you. आदरणीय महोदय, मेरा आपको नमस्कार। और जैसा कि हमारे ऑपोजिशन के लीडर ने कहा कि रिसोर्सेज कैसे लाएंगे, इसीलिए हमने इस साल GDP का 13% एजुकेशन के लिए अलॉट किया है, जो कि उत्तराखंड में 1,12,000
करोड़ के आसपास हमने एजुकेशन के लिए अलॉट किया है इस साल के लिए। और जहाँ तक बात आती है टीचर्स, तो वो हम कर लेंगे। आपको हमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम टीचर्स को भी अलॉट कर लेंगे, हम टीचर्स को बुला देंगे। ये सिर्फ आदरणीय महोदया, ये सिर्फ सत्ता की बातें हैं और हमारे ऑपोजिशन को आप जानती हैं कि कैसे है। शुक्रिया। सबसे पहले तो आदरणीय महोदय और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। जिस तरह हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा कि आप पहले खुद थोड़ा सा पढ़कर आइए। जीडीपी का 13% नहीं, जीडीपी का सिर्फ 6% अलॉट किया गया है। तो आपसे निवेदन है आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार खुद उसे ठीक से देख कर आइए, होमवर्क कर कर आइए। सेकेंडली, यहाँ पर बात की जा रही है कि रीजनल लैंग्वेजेस को एज अ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट किया जाएगा एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। So there are 22 official languages in India and more than 700 languages. The exact number is still unknown. So how many languages will you exactly implement as a mode of instruction? Wouldn't it be a hindrance to the further exploration options for the students as well as teacher? For example, a teacher who's been teaching in Malayalam, will the same teacher be as efficient to teach in any other language? My first question. Secondly, a student who has been studying in their regional language up to 5th standard, will he be able to cope up with his or her studies after the sudden transition in their languages? So this is going to cause a big problem. The third problem which is associated with this implementation of regional languages is that we need to be very much aware about the global language, that is English. In order to compete with globally, we need to understand English because of the huge English-speaking majority in India. The corporate company has been preferring India for setting up their various headquarters. Recently, we saw that Apple set its Apple store in India, in Mumbai. So, which is a result of the vast English-speaking majority in India. That's all. ऑनरेबल मैडम स्पीकर, जैसा कि पप्पा सर ने कहा कि हमारे यहाँ भारत में एप्पल ने अपने स्टोर खोले, वो अच्छी बात है। फिर आपको याद कराना चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पे चाइना आता है, जहाँ ज़्यादा एप्पल स्टोर है। वहाँ पे तो इंग्लिश बोली नहीं जाती ज़्यादा, वहाँ पे तो चाइनीज़ है। और एक बात, जैसे कि पप्पा सर ने कहा था कि हमारे देश में 10,20,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे उनके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई जाता है, रीजनल लैंग्वेज में मीडियम है उनका पढ़ाई का। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी है, जहाँ पे 65,000 से ज़्यादा स्कूल है। जैसे कि तमिलनाडु की बात कर ले, तमिलनाडु में 37,000 से ज़्यादा स्कूल है जहाँ तमिल में पढ़ाई जाती है। वहाँ पे एज इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉट अ मीडियम। मुझे लगता है लैंग्वेज बैरियर नहीं है, माध्यम है अपनी बात को प्रेजेंट करने का। रिसेंट सर्वे आया था 2020 में, पंजाब में आपको पता होगा पंजाबी बोली जाती है। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल तकरीबन 72,000 के आसपास है। वहाँ पे KG से 12वीं तक पंजाबी में सिखाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, आपको पता हो तो। वहाँ पे 14,000 स्कूलों का सर्वे किया गया कि पंजाबी और इंग्लिश दोनों को एज ऑप्शनल माध्यम रखा गया था। बट सरप्राइजिंगली बच्चे पंजाबी ज़्यादा प्रेफर करें इंग्लिश से, और मार्क्स भी उनके पंजाबी में ज़्यादा है। यहाँ तक ग्लोबलाइजेशन आपको कहना चाहता हूँ, ग्लोबलाइजेशन में चाइना भी पीछे नहीं है, जापान भी पीछे नहीं है, और कोरिया भी पीछे नहीं है, और इंडिया भी पीछे नहीं रहेगा कभी भी।
आदरणीय स्पीकर महोदया जी और सभी पार्लियामेंट मेंबर्स को मेरा प्रणाम। आदरणीय स्पीकर महोदया जी, मैं आपके माध्यम से हमारे मेंबर से हमारे मित्र से सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कई बार हमें विरोधाभासी कहा। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये यूसीसी लाकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, अपने कल्चर को टारगेट कर रहे हैं और उधर ही एनईपी से कल्चरल और रीजनल को प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये विरोधाभासी नहीं है? मैं जब अपनी शिक्षा लेने अपने होम टाउन से मुंबई महाराष्ट्र आया था तो यहाँ पे जो अगर मराठी स्टार्टिंग से नहीं बोलता है लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं। ये मेरे साथ हुआ है और भी कईयों के साथ हुआ होगा। तो अगर एनईपी लागू हुआ तो ये और बायस बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। और मेरे एक और मित्र ने अभी कहा कि ये सिर्फ जो भाषा है वो बैरियर नहीं माध्यम है। जब सिर्फ माध्यम ही है तो किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो, आपको क्या उससे दिक्कत है? और एनईपी के 4 पिलर्स जब बिल पास हुआ तो एनईपी के मतलब जब बिल प्रेजेंट हुआ तो एनईपी के 4 पिलर्स हैं, इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो बात अगर इक्विटी और एक्सेस की करें तो वो तो पहले से थी ही, अगर वो नहीं थी तो वो रूलिंग पार्टी की गलती है। और अगर क्वालिटी का देखा जाए तो आप एनईपी ला के क्वालिटी घटा ही रहे हैं, क्योंकि आप 1 साल 2 साल में अगर डिप्लोमा दे रहे हैं तो एक्सपीरियंस किधर है? आदमी अगर पढ़ेगा नहीं, 3 साल 4 साल की कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं करेगा, 2-2 साल 1-1 साल में वो एग्जिट रूट खोजेगा अगर, तो उसको कहाँ अकाउंटेबिलिटी? ये अकाउंटेबिलिटी को भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है, आपकी भाषा में विरोधाभासी है। Honorable Speaker Madam, I would love to address that NEP 2020 recognizes the positive impact of mother tongue in improving critical thinking and innovation. Then I would love to add on a point that nearly 70% of population is dependent on agriculture in India and 72% of population resides in rural area. So the use of regional language can be useful for them to learn and also increase the knowledge and skills which will positively impact the economic growth of our country. And हमारे opposition party ने जो बोला 6% वाला, आपको मैं क्लास वर्क करवा देती हूँ। It is 13% according to 2023 and 24. And also जो आप लैंग्वेज के बारे में बोल रहे थे, सबसे पहले 3 languages allowed है, that is Hindi, English and regional language. So please keep this into consideration. And आप जो पॉइंट ला रहे हो ग्लोबलाइजेशन की, सबसे पहले नेशनल लेवल पे तो हम डेवलप कर रहे हैं। अबाउट नेशनल लेवल पे हमें डेवलप करना चाहिए द पॉपुलेशन जो रूरल है, अगर वो स्किल्ड होगी तो हम और ग्रो करेंगे। थैंक यू। First of all, thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity. मैं तो पहले बोलना चाहूँगा, who says रूरल एरिया डेवलप नहीं है? रूरल एरिया डेवलप है। इंडिया के 2000 पेटेंट्स में से more than 500 पेटेंट्स आर बी रजिस्टर्ड फ्रॉम रूरल एरियाज। अगर हम लैंग्वेजेस की बात न करें, अगर हम कम से कम लैंग्वेजेस रखें इंडिया के अंदर, ऑलरेडी देयर आर 675 लैंग्वेजेस। हम सब हमारे घर पे नॉर्मल लैंग्वेजेस में बात करते हैं, जो भी हम लोग की रीजनल लैंग्वेज हम उसी में बात करते हैं। तो व्हाई शुड वी ब्रिंग देम इनटू द कॉलेजेस एंड स्कूल्स? आई एम नॉट सेइंग दैट रीजनल लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हम लोग उसको ऑलरेडी घर पे प्रैक्टिस करते हैं। और कितने तो लैंग्वेज ऐसे है जिसको लिखा नहीं जाता, उसे सिर्फ बोला जाता है, तो उसे क्यों लाने की जरूरत है? इंस्टेड ऑफ दैट, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है, देयर आर 22,000 पेटेंट्स रजिस्टर्ड बाय यूएसए, 14,000 पेटेंट्स रजिस्टर्ड बाय इजराइल। Instead of bringing languages over there, we can just have a research and development facilities more and more developed in India. 2,000 patents and 14,000 patents and 22,000 patents कुछ फर्क दिख रहा है? अगर जो भी पैसा अभी लगेगा ही, कुछ एक अमाउंट लगेगा, नए टीचर्स को लाना पड़ेगा, नए टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट लगेगा, XYZ, it may be going in crores, thousands of crores और lakhs of crores में वो अमाउंट जाएगा।
उतना ही पैसा अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया जाएगा, इंडिया विल बी अ ग्लोबल प्लेयर। आज जैसे आप देख रहे हैं ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जो इंडिया में आई है, इंडिया ने जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है उसे ओवरऑल वर्ल्ड डिमांड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंडिया का है। इंस्टेड ऑफ लैंग्वेजेस पे फोकस करना, मिनिमम लैंग्वेज रखा जाए। अभी कैसा है, इमरजेंसी सिचुएशंस में कहीं अर्थक्वेक आ गया, डिजास्टर आ गया, सपोज आई एम वर्किंग इन महाराष्ट्र, मुझे तमिलनाडु में जाना पड़ा किसी सिचुएशन के चलते, अगर उनको वो लैंग्वेज नहीं आती होगी, एक ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड लैंग्वेज, सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश, एक ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूं वो लोग से। तो अगर उनको इंग्लिश ही नहीं आती होगी तो देयर विल बी बैरियर। Languages should be practiced, but languages should not become a barrier when it comes to emergency situations. And first of all, इतना जो फंड अभी हम लोग को यूज करना पड़ेगा किसी भी नए लैंग्वेज को बनाने, नए लैंग्वेजेस के टीचर्स हम लोग को रेडी करने पड़ेंगे, सिलेबस नया रेडी करना पड़ेगा, 0 से लेकर अब 100 तक हम लोग को सिलेबस रेडी करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस 12 तक हम लोग को सिलेबस बनाना पड़ेगा। Why should we make new syllabus? हमारे पास सिलेबस है। Let's focus on research and innovations of the thing. Thank you. Please maintain the document. Respected Madam Speaker, first of all, I'd like to clarify one thing to my fellow parliamentarians, that knowing a language and allowing a language to dominate our country are two different things. This is the thing that we should keep in mind. और जैसा कि एक हमारे मित्र ने कहा कि जब मैं अपने होम टाउन से महाराष्ट्र आया था तो यहाँ के लोग मुझे नेग्लेक्ट कर रहे थे। वो नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटी कि आपने मराठी यहाँ आकर सीखी नहीं, आपको सीखनी चाहिए मराठी। अगर एक डॉक्टर जाके इंजीनियर्स के बीच में बैठ जाएगा तो वो डॉक्टर नेग्लेक्ट होगा ही। हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बस ऐसे जो भी आया मन में वो बोल देना तो सही नहीं होता है ना। दूसरी बात, हम ये चीज बोलते हैं कि आज पूरी दुनिया, जैसे उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया ब्रह्मोस मिसाइल के पीछे का डिमांड है। वो ब्रह्मोस मिसाइल का जो वर्ड है वो भी हिंदी में लिखा गया है, वो संस्कृत में लिखा गया है। लोग काम के पीछे, क्वालिटी के पीछे आते हैं, ना कि नाम के पीछे, ना कि लैंग्वेज के पीछे। हम अगर खुद अपनी कंट्री को, हम अगर अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को अथॉरिटी नहीं देंगे, हम अगर अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर की कंट्री हमें रिकॉग्नाइज करेगी। ये सब चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। Knowing a language is a different thing, and allowing that language to dominate ourselves is a completely different thing. This is the exact same reason why regional language should be introduced in anything. Thank you so much. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक डॉक्टर अगर इंजीनियर्स के बीच में जाके बैठ जाएगा तो ये कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, और ये उनके इंटरेस्ट की बात है क्योंकि उन्होंने अलग करियर चूज किया। और दूसरी बात, ये नया रीजनल लैंग्वेज लाने की चीज़ बात करने के लिए काफ़ी आसान लगती है, पर इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत डिफिकल्ट होता है। अकॉर्डिंग टू इजी स्कूलिंग, इंडिया में 15 लाख स्कूल्स है, 95 लाख नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड टीचर्स है, और 26.52 करोड़ स्टूडेंट्स है, जिसके हिसाब से टीचर टू स्टूडेंट टू टीचर रेशियो 28:1 हो जाता है। तो इन टीचर्स को ट्रेन करना और इन स्टूडेंट्स को समझाना कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत यूज होंगे, और ये अभी के लिए ऐप नहीं है। और स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश हैज आल्सो बिकम अ बिग प्रीरेक्विजिट फॉर अ लॉट ऑफ जॉब्स इन इंडिया इटसेल्फ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर रीजनल लैंग्वेज का क्लॉज इम्प्लीमेंट हो जाता है और स्टूडेंट्स रीजनल लैंग्वेज में सीखना चालू कर देते हैं, तो हु इज टू से हाउ बिग द इकोनॉमिक डाउनफॉल ऑफ द कंट्री माइट बी, क्योंकि हमें नहीं पता चल सकता कि कितना इफेक्ट पड़ेगा इस बात का हमारे देश पे। स्पीकर मैडम, जैसा इन्होंने कहा कि जरा क्लास होमवर्क करके आइए, तो क्लास में डेकोरम भी होता है, तो डेकोरम भी जरा इनको बोल दीजिए कि सदन में डेकोरम भी मेंटेन करके रखें ताकि सदन की गरिमा बनी रहे।
है कि नहीं? अभी जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर इंजीनियर से रीजनल लैंग्वेज नहीं करना चाहिए, तो इन्हीं के सरकार में लाया गया एक एक्ट था राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया था। उसके सेक्शन 29F में साफ लिखा गया है कि बच्चे की पढ़ाई प्रेफरेबली उसके मदर टंग में ही की जानी चाहिए। और फैक्ट्स तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, रिसर्च पेपर्स बहुत ज्यादा है। आप 1954 की यूएन की रिसर्च रिपोर्ट देख लीजिए, 2004 की यूनेस्को की रिपोर्ट देख लीजिए, सबने ये कहा है कि एक मदर टंग में आपको अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेनी चाहिए। और ये कंपलसरी नहीं की है, तीनों लैंग्वेज जैसा कि हमारे सदस्य ने बताया कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज रहेगी, तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। अगर आप जाएं, अगर हम इन संसद को, इन सबको इनके बचपन में जो एक घर पे अगर हिंदी बोलते होंगे या इनकी रीजनल लैंग्वेज बोलते होंगे, इनको उठा के एक फ्रेंच स्कूल में डाल दिया जाए, तो ये क्या ये फ्रेंच वाले स्कूल में कोप अप कर पाएंगे अपने प्राइमरी एजुकेशन में? जरा बताइए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक पढ़ने का माध्यम है, ना कि इसमें लैंग्वेज बैरियर कहीं खड़ा हो रहा है। अगर आप किसी भी स्टेट में जाए तो आपको उसकी भाषा आनी चाहिए, बहुत ही सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप ही खुद उसका विरोध करेंगे तो आप फिर एक उज्जवल भविष्य भारत का कैसे देख सकते हैं? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर रीजनल लैंग्वेज में होगा तो बच्चे की जो फाउंडेशन स्किल्स है वो बेसिक में 5वीं कक्षा तक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद उसे बेसिक जब क्लियर होगी तब उसे दूसरे लैंग्वेज के ट्रांजिशन में इतना मुश्किल नहीं होगा। आप उस बच्चे की दुर्गति नहीं समझ रहे हैं। अगर बच्चा जो है, जो माँ के पेट में होता है, वो लैंग्वेज सिर्फ सुनता है और अपने हिसाब से उसको फॉर्मुलेट कर लेता है, कोई सीख जाता है। इसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं, ये नेचुरली होता है, हर जगह होता है। लेकिन अब आप उससे कह रहे हैं कि तुम 4 साल तक घर पे जो रीजनल लैंग्वेज है बोलो, उसके बाद स्कूल में जाके डायरेक्टली तुम पे एक इंग्लिश जैसी कमर्शियल लैंग्वेज थोप दी जाती है, तो उस बच्चे का जरा बर्डन भी समझ लीजिए कि उस बच्चे पे कितना बर्डन आ रहा है कोप अप करने के लिए। इसीलिए और ये कह रहे हैं कि इसके रिसोर्सेज नहीं है। कोरोना जैसी महामारी में जहाँ विपक्ष पूरी तरह से देश पर तो ध्यान छोड़िए, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में पूरी तरह लगा हुआ था, तब हमने एजुकेशन पर काफी ध्यान दिया। दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया जहां पर 1 से लेकर 12वीं तक की कोर्स की किताबें 32 इंडियन लैंग्वेज में, 32 इंडियन लैंग्वेज में उसको पेश किया गया और लाई गई हैं। विद्यांजलि पोर्टल भी लाया गया जहां पे जो मदर टंग अच्छे से जानते हैं वो टीचर्स के साथ वॉलंटियर करें और उन्हें उस लैंग्वेज में कोप अप करने की मदद भी करें। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमेशा गलती ये करते हैं और उसका ढींढा हम पे फोड़ देते हैं और फिर हमको सारा काम करना पड़ता है। बस यही सारी दिक्कतें हैं और NEP जरूर लागू होगा। और अगर विपक्ष इस पर कोई भी डिस्कशन चाहता है तो मंजूर है, लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ हल्ला चाहता है और संसद को आगे टाल देना चाहता है तो इससे हमारी सरकार ना देश की जनता बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, तो मैं रेलवे मिनिस्टर से पूछना चाहूँगा कि अगर आपको मैं यूपी भेजूं और वहाँ बोलूँ कि भोजपुरी सीखिए, क्या आप सीखेंगे? आपको आती है, आप प्लीज मेंटेन द डेकोरम, सॉरी, आपको आती है, बट यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे जो युवा है वो अलग अलग स्टेट ट्रेवल करते हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो उनको रीजनल लैंग्वेज में थोपना, फिर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको रीजनल लैंग्वेज थोपना जरूरी नहीं होना चाहिए। उसके बजाय हमको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि हम जब पढ़ाते जब स्टूडेंट्स को हम एडमिशन लेते हैं तो उनका जो 50% इन हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, तो 63% इन 9th क्लास में छोड़ देते हैं बच्चे। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें ये रीजनल लैंग्वेज का वो उठाना चाहिए मुद्दा। आदरणीय महोदय, जैसा कि हमारे ऑपोजिशन के एक सदस्य ने अभी कहा, रीजनल लैंग्वेज थोपना नहीं चाहिए, तो हम रीजनल लैंग्वेज थोप भी कहा रहे हैं, हम तो बस प्रमोट कर रहे हैं। हम इंग्लिश को भी है, हम रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट कर रहे हैं और हम वैसे ही हिंदी और उर्दू को भी प्रमोट कर ही रहे हैं। हम कोई भी किसी पर भी कोई भी लैंग्वेज नहीं थोप रहे और ना कभी थोपेंगे। और जैसे कि पहले हमारे एक दूसरे ऑपोजिशन के सदस्य ने कहा था कि हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो डिमांड है पूरी दुनिया में, ये है वो है, तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि UPI की भी उतनी ही डिमांड है। और वो किसने लाया था? आपने कहा कि आप रीजनल लैंग्वेज थोप नहीं रहे हैं,
नोट डाउन द पॉइंट। इन्होंने कहा कि रीजनल लैंग्वेज थोप नहीं रहे, लेकिन अगर वो चीज पढ़ाई में आ गई पहली से लेकर 8वीं तक की, तो क्या होगा? थोपा ही तो गया है ना। थोपने की बात नहीं कर रहे, पर थोपा ही तो गया है ना वो। अगर मैं यहाँ से आसाम चले जाता हूँ, वहाँ पे आसामी लैंग्वेज है। सपोज मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ से मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है आसाम में, तो मुझे वहाँ जाके तो आसामी पढ़नी पड़ेगी ना, तो वो तो इनडायरेक्टली मुझ में थोपा ही जाएगा ना। और आप बेसिक बात क्या करते हैं? बेसिक बात ये कर रहे हैं कि लैंग्वेजेस जो है लाइक फॉर पहले साल, दूसरे साल, 3 साल, 4 साल तक बच्चा हिंदी में बात करता है घर पे, 4थे साल वो इंग्लिश में बात करना चालू करता है। पर क्या आपको स्कूल में ABCD से सिखाया नहीं जाता? क्या आपको ABCD से सिखाया नहीं जाता? ABCD टीचर आपको एक एक करके सिखाते हैं ना, अल्फाबेट। आपके ऊपर डायरेक्ट थोपा तो नहीं जाता कि आप इंग्लिश में ही बोलो। टीचर डायरेक्ट चालू ना, तो गुड मॉर्निंग बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क, आप साइन थीटा कॉस थीटा पढ़िए, ये चालू होता है इंग्लिश में? नहीं ना, ABCD से पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे क्या होगा मालूम है? चाइना में लास्ट ईयर चाइना ने अपना $5 बिलियन का बिजनेस खोया, और वो सारी कंपनीज इंडिया, उसमें 60% कंपनीज इंडिया में आई अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए। रीजन वाज इंडिया हैज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो इंग्लिश में बोलता है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो इंग्लिश बोलता है। अभी अगर एज ए ग्लोबल कॉम्पिटिटर हमें खड़ा होना है, तो हमें ग्लोबल लैंग्वेज पे जाना ही पड़ेगा, एंड दैट्स कंपल्सरी थिंग। ऑफिस में जाते हो तो इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दोगे? आई एम सिटिंग इन इंडिया, कोई कंपनी आती है फॉरेन से, USA से सपोज कोई कंपनी आती है, हिंदी में इंटरव्यू दूंगा? हिंदी में दूंगा इंटरव्यू में? रीजनल लैंग्वेज से अच्छा है कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, घर पे हम बोलते ही, पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सेंट्रलाइज की जाए जो ग्लोबल लैंग्वेज हो, जिस वजह से हमें ग्लोबल प्लेयर बनने में ज्यादा आसानी होगी। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बात कहा कि अगर मैं असम ट्रांसफर हो जाऊंगा मेरे पिताजी का तो क्या होगा। मुझे लगता है इनको जानकारी नहीं है, असम की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है। दूसरा, असम ही नहीं, आप हरियाणा चले जाइए, चाहे आप राजस्थान चले जाइए, चाहे आप उत्तराखंड चले जाइए, चाहे आप हिमाचल चले जाइए, वहाँ की जो बातचीत की भाषा वो अलग हो सकती है, लेकिन जो राज्य भाषा है, जो पढ़ाई लिखाई का जो माध्यम है वो हिंदी है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इंटरव्यू देने की बात, मैं इनको एक बात इनकी जानकारी के लिए बोलना चाहता हूँ कि देश में जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो UPSC का होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। वहाँ पे भी आप अपना इंटरव्यू किसी भी भाषा में दे सकते हैं, आपको इसकी आज़ादी है। तो मुझे लगता है कि जब देश के सर्वोच्च सेवा में ये प्रावधान है, तो फिर बाकी जो निचली सेवाएं हैं वहाँ पे आपको क्यों विरोध है? तीसरा, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इसलिए है कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग जो पढ़ा लिखा नहीं है, सपोज एक इलेक्ट्रीशियन का काम है, एक सिलाई मशीन का काम है, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली कोई महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है और वो अपनी भाषा में चीज़ों को समझ सकती है, उसको स्किल प्रोवाइड करने के लिए इस बात को ध्यान में रख करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश में लाई गई। दूसरा, हम हमेशा इस बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा जो ध्यान है हमारे कल्चर को प्रमोट करने पे है, हमारे लैंग्वेजेस को प्रमोट करने पे है, और हमारा जो यूथ है उसको ये बताना है कि वी हैव डाइवर्सिटी एंड वी हैव रिच कल्चर। थैंक यू। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, पहले तो जैसे कि तो मैं तो ये कह देना चाहता हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर अपने आप ही खड़े हो गए, जबकि आपके बोलने के लिए। तो पहले तो अपना डेकोरम देखें और अपनी यूनिटी पे ध्यान दें। दूसरी बात, मुझे अभी भी इम्प्लीमेंटेशन का आंसर नहीं मिला है कि इम्प्लीमेंटेशन इतने 15 लाख स्कूल्स में, 95 लाख टीचर्स में कैसे होगा, क्योंकि ये देश
दिस कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ पीपल। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पेपर पे लिखना कुछ भी बहुत आसान लगता है और इम्प्लीमेंट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि रूलिंग पार्टी के एक सदस्य ने ये भी कहा कि 4 साल मतलब रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं और फिर इंग्लिश थोप दिया जाता है। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि इस उम्र में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे होती है, काफ़ी आसान हो जाता है। एक और चीज़, जब हम रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं और आपने कहा कि यूपीएससी अपने मतलब रीजनल लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस विल ओनली लीड टू बबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अभी जो इंडिया के अंदर ही कंपनीज है या गवर्नमेंट है वो अलाउ कर देंगी ये रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरव्यू लेना, पर क्या बाहर के एमएनसीज अलाउ कर पाएंगे? क्या उनके पास इतना वर्कफोर्स रहेगा? अगर कोई बाहर का से सीईओ आ गया, किसी बाहर के कंपनी का सीईओ आ गया इंडिया में, तो आप उससे हिंदी में बात करेंगे, उसे आधी बात समझ में नहीं आएगी, या फिर अगर ट्रांसलेटर भी ले लेते हैं तो आधी बात ट्रांसलेशन में गुम हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री का डेवलपमेंट थोड़ा कम हो जाए, ना कि ख़त्म हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में आज से 75 साल से, तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम आई? जीडीपी आया, डिमोनेटाइजेशन आया, एलपीजी आया, इतने सारे अमेंडमेंट्स आए, इतने सारे लॉज आए, तो उसको किसी न किसी तरह से इम्प्लीमेंट किया ही गया है। और विपक्षी पार्टी ने ये भी बोला था कि केरला और असम या किसी भी अदर स्टेट्स के बच्चे आएंगे और पढ़ने आएंगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऐसे भी सर्वे करती है, सेंसस से सर्वे करती है, जिसके हिसाब से वो देखती है कि कितनी पॉपुलेशन किस किस स्टेट के हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल बनाती है और उसी हिसाब से बच्चे पढ़ाई करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। और तीसरी बात ये कि विपक्षी पार्टी ने ये भी बोला था इंटरव्यू देते समय प्रॉब्लम आएगी अगर हम ग्लोबल लेवल पे जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी आज का एरा ऐसा है कि हम डिजिटलाइजेशन में रह रहे हैं, हम एआई आने वाला, हम एआई के ज़माने में रह रहे हैं। तो ऐसा कौन सा भारतवर्ष में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, जिसके पास लैपटॉप नहीं होगा, जो ई लर्निंग के थ्रू अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता? पूरी दुनिया का ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो आज के डेट में बच्चा घर पे रह के पढ़ नहीं सकता। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हुई थी, तो आज से हम देखेंगे 2001 से 2013 तक हमारे देश के कई युवा पढ़ाई करके आईआईटी आईएम से ग्लोबल लेवल पे यूएस चले जाते थे पढ़ाई करने। पर आज मैं कहूँगी कि आज हमारा देश फिफ्थ इकोनॉमी बन गया है, जिसके वजह से अब हमारे देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बच्चे को आईआईटी आईएम से फॉरेन में पढ़ने जाना पड़ेगा, जिससे जैसा हमारे देश में 50 से ज़्यादा % लोग हिंदी बोलते हैं, तो अगर वो हमारे देश में आईआईटी आईएम से पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा का यूज़ करके या अपने रीजनल भाषा का यूज़ करके वो हमारे देश में ही रह के बड़े साइंटिस्ट, जैसे कि चंद्रयान लॉन्च हुआ, बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। उन्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और तीसरी बात ये कि यूथ है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो दूसरे लैंग्वेज सीखता नहीं है। तो हमारा पूरा देश पूरी दुनिया में ऐसा माना गया है कि हमारा देश यूथ कंट्री है और हमारा देश कुछ सालों तक यूथ रहेगा। तो अगर हमारा देश यूथ है तो उन्हें कोई भी लैंग्वेज, किसी भी एज युवा को पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। किसी भी चीज़ को टैकल करने में हमारा देश हमेशा आगे बढ़ेगा और हमेशा बढ़ता रहेगा।
मेरा सदस्य से निवेदन है कि अपना पॉइंट कंक्लूड करें। हाँ, और आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। छोटे छोटे तबके जो ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं, वो अगर रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर वो आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। Honorable Speaker Madam, we have heard a lot of arguments from the ruling party. The one thing which is very prevalent here and can be seen throughout is that जब उनके खुद के पास सवालों के उत्तर नहीं होते तो वो हमारी inadequacies को point out करते हैं। मैंने सबसे पहला यह